कहते हैं कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, पर कलम से निकले उन शब्दों में वो दम भी होना चाहिए कि वो पढ़ने वालों के मन मस्तिष्क में उतर जाएं। अपनी शब्दों की ताकत का परिचय देकर हर राज्य से चुनिंदा लेखक हमारे बीच आ चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगली श्रेणी की ओर, जो है एक्सप्रेशन आर्ट, और मिलते हैं देश के उत्कृष्ट युवा लेखकों से इस प्रतियोगी खंड में, जिसका नाम है क्रिएटिव राइटिंग। थीम उत्साह नए भारत का। तो सबसे पहले आ रहा है पहला राज्य हरियाणा।
पंजाब। Young India, New India, the power to change lies with the youth. Good morning, one and all. This is Disha participating in creative writing essay. India's population is among the youngest in an aging world. With over 65% of our country under the age of 35, India enjoys a demographic dividend like no other country in the world. Hence, here it becomes imperative to channelize this youthful energy of India towards nation building activities by focusing on vocational, technical, and entrepreneurship skills. It's important today to progress upon the principles of innovation and creation. And it's indeed a matter of pride when we see India progressing up on certain principles and thereby moving towards the goal of sustainable development. It is worth mentioning here that the initiatives taken by Government of India are acting as catalyst towards moving to the self-reliant India. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, and most importantly, National Skill Development and Entrepreneurship Policy 2015 are some out of long list. Startup India, among all, is a kind of initiative that promotes the concept of innovation and entrepreneurship skills among the youth of the India. Its result can be well seen from its rank. India holds third largest startup ecosystem, and not only this, India is at fourth position across the world in producing unicorns. This is what I call Utsaah Ne Bharat Ka. Innovation and creativity is the need of the hour. Its combination with the technology enhances its beauty and productivity level more. Startup India, Digital India are among those programs which has gained momentum and popularity. Similarly, programs like Atal Innovation Mission are becoming the great contributors in making Atmanirbhar Bharat through innovation and entrepreneurship skills. It is true agreeable fact that this journey to arrive to the destination of self-reliant India is not a cakewalk, but we can do it by cooperation, collaboration, transparency, and unity. I must say here that it becomes the fundamental responsibility of the youth of the India, the Yuva of the India, to rise awake and not to stop until the goal is reached, which is the famous saying of Swami Vivekananda. Today, I can see the Utsaah of Naya Bharat on the technological front. E-health through National Digital Health Mission and e-education from platforms like Diksha, EPG Pathshala, Swayam, and many more has proved their importance and value to us in this pandemic. Today, I can see my new India becoming conscious about the sustainable development goals and moving forward on the progressive path. Today, citizens of India have started believing on the notion that innovation for the people and innovation by the people is the only direction of our new India. Today, with the proud heart to see our new rising India on every front and holding a ray of hope for its future progress, I would like to conclude that you can make a change. You can make a new India. You can make a prosperous India. Do something new. Do something innovative for yourself and for your country. That's all. Jai Hind, Jai Bharat. Greetings, my name is Astha Singh and I am a participant of creative writing. The topic provided for creative writing was Utsaah Ne Bharat Ka, the spirit of New India. And what I have written goes like this. Tucked in the sofa of my patio, as I was trying to slacken the muscles of my mind over philosophical ideas, the glimpse of a mother sparrow popping food into her child's tender beak caught my attention. It is indeed a pleasure for parents to pass on legacies to their children. And that was when I began to ponder. If we could do one such thing with our motherland, India, form a new infant nation, what qualities would I want in it? I, being a girl, have had instances where I had to pull my shirt back on my shoulders because I don't want anyone to know that I'm asking for it. I, being a girl, have had to wipe my lipstick off my face because I don't want to give anyone any sort of hints.
I, being a girl, have had to face timings where I had to change my outfit because the length of my skirt wasn't perfect. And if there's one thing that went on in the back of my head during all those moments, it was, you rape a woman covered from head to toe, you call every other girl a hoe. A 9-month baby girl is raped too, and candle marching is the only thing that people do. What do I want for New India? I don't know. But I certainly don't want any more candle marches in the country because I don't want any Nirbhayas to start with. What do I want for New India? I don't know. But I certainly don't want the people of India going down on the streets and shouting Bharat tere tukre honge, inshallah, inshallah. What do I want for New India? Unfortunately, I do not know. But I certainly don't want any Indian to discourse upon and ramble on and relate the issue of triple talaq to something as petty as Hindu-Muslim issue, which authentically was just about gender equality. Because we did it perennially, we did it constantly, and we did it blatantly, audaciously, and felt like we were achieving something when we did it. I don't know what I want for my motherland, but I don't want any more name changes from this to that, from Allahabad to Prayagraj, because every time I see something like that happening, the only question that comes to my mind is, where does this stop? Because instead of dynamism, we are opting for stagnation. Instead of fluidity, we are choosing rigidity. And instead of unity, we are going for uniformity. As is rightly said by Mr. Tharoor, are we so insecure about our independence that we still need to prove ourselves that we are free? Is there no comfort, after all, in being able to take places for granted without the continuing sense that they are still susceptible to being renamed? I believe the following lines sum up pretty much everything. अरे हमारे हिंदुस्तान की दशा तो हमारे हाथ ही बताते हैं, जोड़े तो भगवान और खुल जाए तो अल्लाह को दर्शाते हैं. The rise in the percentage of women entrepreneurs from 10% to 14% because of Startup India movement surely does make me happy. Whenever a fellow farmer of ours learns about per se new irrigation techniques because of Unnat Bharat Abhiyan, it sure brings a smile on my face. Every time I see my younger brother not throwing a wrapper on the road but waiting to find a dustbin can, it sure does make me proud and makes me feel proud. But every time I come across a news like that 18-year-old boy from Gurugram committing suicide a few months back because a girl falsely accused him of rape, it kills a piece of me. Every time I hear a girl saying, I wish I was born in some other country, it kills a piece of me. Every time I see people brutally murdering some other person because he was of some other religion, it kills a piece of me. To define a new India is certainly a Sisyphean task because a mother would never want any less qualities in her child. All I know is that I'm proud of my nation. I just want my nation to be proud of me one day. Because after all, it is not about the spirit of New India. It is just about the spirit of new Indians. Thank you. उत्साह एक नए भारत का, एक नए दौर का, एक नए भारत का निर्माण करती एक नई सोच के आगाज का, नया भारत, युवा भारत, जहाँ ना कोई आस्तिक है, जहाँ ना ही कोई नास्तिक है, जहाँ बुद्धि में हर कोई वास्तविक है, जहाँ कुछ भी मानने से पहले तर्क है, नया भारत जो अत्याचार के विरुद्ध सतर्क है. बदला नहीं, ये बदलता हुआ भारत है. युगों युगों से रूढ़ियों में ढलने का कायल था जो, नई उड़ान इसकी अब खुद में ही कायम है. आज़ादी से लेकर अब तक 70 सालों में हम भारत में आए कुछ बड़े परिवर्तनों और भारत की नई नई उपलब्धियों के गवाह बने हैं. और बदलाव की इस सकारात्मक प्रतिक्रिया में भारत के युवा ने एक अहम भूमिका निभाई है. भारतीय युवा के बदलते दृष्टिकोण ने हमारे देश को एक नई दिशा दी है. नया जोश है, नया मंजर है, एक नया हिंदुस्तान है बन रहा. गुलाम भारत से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक, गांधी जी के भारत छोड़ो के नारे से लेकर मोदी जी के भारत जोड़ो के नारे तक, मेरा भारत हर पल निखर रहा है. अपने जोश और अपने उत्साह से निरंतर आगे बढ़ रहा है.
भारत और भारतीय युवा के इसी जोश, इसी उत्साह ने लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे को आज जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान के नारे में परिवर्तित कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज विश्व की शीर्ष 5 अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। चांद पर लहराकर तिरंगा सिर शान से उठाता है। चांद पर लहराकर तिरंगा सिर शान से उठाता है। हम उसी भारत के वासी हैं जो पूरे विश्व का योग गुरु कहलाता है। कोरोना जैसी महामारी में भी दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से ही कोरोना की संजीवनी बूटी की उम्मीद लगाए हुए थे और हाल ही में भारत बायोटेक और ICMR द्वारा तैयार की गई भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन भारतीय वैज्ञानिकों के उत्साह और जोश की ही देन है। आज दुनिया भर के देश भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को टकटकी लगाए देख रहे हैं। किसे पता था कि महिंद्रा और महिंद्रा वेंटिलेटर भी बना सकती है। अंदाजे तो यह लगाए जा रहे थे ना कि कोरोना से भारत में लाखों मौत होने वाली है, क्योंकि भारत के पास ना तो PPE किट थी ना N95 मास्क थे। आज मेरा प्रश्न सिर्फ एक है कि ये कैसे हुआ? कैसे उसी भारत ने दुनिया भर में ट्रक भर भर कर दवाइयाँ, N95 मास्क और PPE किट भिजवा दिए। यह है मेरा नया भारत। मेरा नया भारत समस्या को टालता नहीं है, समस्या से टकराता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, दिल में एक ही लक्ष्य लिए, दिल में एक ही लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए। जिद है एक नया सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक नया भारत हमें बनाना है। जय हिंद। राजस्थान भारत ने जिस उत्साह के साथ विज्ञान को आलिंगित किया है वह काबिल तारीफ है। आज का भारत हाइड्रोजन पर आधारित कार बना चुका है। आज का भारत आत्मनिर्भर होकर भारतीयों के अंतरिक्ष में जाने के स्वप्न को गगनयान के माध्यम से यथार्थ में प्रविष्ट करा चुका है। और आज का भारत एक्सरे के माध्यम से ब्लैक होल्स को पहचानने की विधि पूरे विश्व को पहली बार बतला चुका है। और इस वैज्ञानिक समृद्धि का साथ दिया है हमारी नैतिक उन्नति ने, जो महिलाओं को गरिमामय अधिकार दिलाती है। इस ठप पड़ी दुनिया में भी गुरुओं और शिष्यों को प्रतिदिन ऑनलाइन मिलाती है, जो त्राहिमाम करते हुए विश्व को हाइड्रोक्लोरोक्विन पहुंचाती है और इसके साथ ही तमाम बाधाओं को हराते हुए पूरे उत्साह और पूरी सुरक्षा के साथ इस युवा समारोह को संभव बनाती है। और वास्तव में इस युवा समारोह के नाम और इसके स्वरूप से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस नए भारत के उत्साह के नेता हम युवा हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और युवा सुलभ स्वभाव के बारे में कवि हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं, पोत अगणित इन तरंगों ने डुबोए मानता है, पार भी पहुंचे बहुत से यह बात जानता है, किंतु होता सत्य यह भी कि सभी जलयान डूबे, पार जाने की प्रतिज्ञा आज पर्व स्थानता में डूबता मैं, किंतु उतराता सदा व्यक्तित्व मेरा, हो युवक डूबे भले ही है कभी डूबा न यौवन, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण, आज लहरों में निमंत्रण। और जोखिम बोल लेने की इस उत्कंठा, इस जोश और इस आत्मविश्वास के कारण ही चले आते हुए वक्त से लेकर आने वाले काल तक हर युग में यदि यह समाज उत्कृष्ट विचारों के क्रियान्वयन, कुरीतियों के उन्मूलन और नवोन्मेष के आगमन के लिए किसी पर निर्भर रहा है तो वो है युवा। वर्तमान में जिस समय स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम हमारी गुणात्मक अभिवृद्धि में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं
और जिस वक्त भारत का कार्यशील वर्ग जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन से कहीं अधिक बड़ा है, उस वक्त युवाओं का जोश पूरे ज्वार पर उफल रहा है और कह रहा है कि आसमानों को झुकाना हमने है सीखा नहीं, फकत कोशिश है कि एक उड़ान ऊंची हम भरें। ये भारत। मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। शीर्षक है उत्साह नए भारत, जो कि सोचा नहीं था कि यहाँ आके बोलना है, देख ही पाया था, तो देख के ही बोलूँगा मैं। नव भारत, नव कल्पना, अभिनव स्वर, नव चेतना, राष्ट्र का हो नव कल्याण, नव संकल्प से हो नव निर्माण। नए भारत के संकल्प को चरितार्थ करते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि निराशा की अमावस की गहन निशा के अंधकार में हम अपना मस्तक आत्मगौरव के साथ ऊंचा उठाकर देखें। विश्व के गगन मंडल पर हमारी कलित कीर्ति के असंख्य दीपक जल रहे हैं। हजारों मील की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू हुई। भारत के नवोन्मेष विकास का लक्ष्य उसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी ने अपनाया था। उन्होंने राष्ट्र सेवा में लगे प्रत्येक नागरिक विशेष होने का अनुभव करवाया था। नए भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पूरे राष्ट्र ने भारत को गंदगी, गरीबी, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त कराने तथा वर्ष 2022 तक नए भारत का निर्माण करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य करने का प्रण एक स्वर ने लिया था। भारत जिन समस्याओं से घिरा है और जो उनकी उन्नति में बाधाएं उत्पन्न करती है, उन्हें हटाने के लिए सरकार और जनता के साझा प्रयासों की आवश्यकता है। नया भारत जो प्रेरणा देगा, उत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा, प्रशासन को बदल कर रख देगा, सरकार के साथ साझेदारी के लिए शक्ति प्रदान करेगा और देश के समावेशी विकास पर जोर देगा। प्रधानमंत्री के अनुसार प्रत्येक नागरिक देश की विकास यात्रा में कुछ न कुछ योगदान कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, अटल नवाचार मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री युवा योजना, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया इत्यादि जन कल्याणकारी सरकारी कार्यक्रम भारत के नवनिर्माण के संकल्प को साकार करने के लिए चलाए जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि युवा किसी भी राष्ट्र के भविष्य की तस्वीर होते हैं। हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण, सशक्त और जागरूक वर्ग युवकों का है, जिसमें आसमान की बुलंदियों को छू लेने की आकांक्षा धड़क रही है। उन्होंने विजन 2020 का सूत्र दिया था और उसे संपूर्ण देश का लक्ष्य बताया था। युवा ऐसी प्रयोगशाला नहीं है जहां सरकारी तंत्र के सह उत्पादों का परीक्षण किया जाए, बल्कि वे परिवर्तनशील हैं जिनका प्रयोग समसामयिक प्रासंगिकता वाले कौशल पर आधारित नए अवसर सृजित करने के लिए होना चाहिए। युवाओं को केंद्रित रखकर विविध योजनाएं क्रियान्वित हैं जो युवाओं के सपनों का भारत बनाने के संकल्प को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। नए भारत का उत्साह नव चेतना और नव संकल्प से परिपूर्ण है। न्यू इंडिया महज आर्थिक विकास का मॉडल नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की संरचना भी झलकती है। नया भारत गंदगी मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, गरीबी मुक्त होगा, जातिवाद मुक्त होगा और सांप्रदायिकवाद मुक्त होगा। नया भारत विश्व पटल पर पुनर्स्थापित होगा। नया भारत ऐसा होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति में स्वावलंबन का भाव हो, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आस्था होगी और भारतीयता में गर्व की अनुभूति होगी। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी छोटी सी बात समाप्त करना चाहूँगा कि गौरवशाली था अतीत, भविष्य भी महान है। गौरवशाली था अतीत, भविष्य भी महान है, अगर सवाल सको जो कि वर्तमान है। धन्यवाद। प्रस्तुत करता हूँ उत्साह नए भारत का। हमारे उत्साह से पूरी परिपूर्ण नए भारत का निर्माण हुआ है। हमारा जो भारत है वो नई उमंग, नई ऊर्जा और नए उत्साह से भरपूर होकर के 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुका है। 21वीं सदी का तीसरा दशक भारत की आकांक्षाओं की नींव के साथ शुरू हुआ है और ये आकांक्षा नए ऊर्जावान भारत की है, युवा सपनों की है और भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की, हर वर्ग के लोगों की है।
भारत को समृद्ध, सक्षम व सर्वहितकारी विश्व शक्तियों से पूर्ण देखने की आकांक्षा है। हमारा भारत नए सपनों का भारत है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, डिजिटल इंडिया हो, अन्य कार्यक्रमों को धरातल पर जिस पर देखा गया है, संसार के मानचित्र पर प्रतिष्ठा को स्थापित होते देखा गया है। इन्हीं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्र के बड़े बदलावों को देश के लोगों ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अब यही उत्साह से भरा ऊर्जावान भारत प्रत्येक भारतीय के मन में बस चुका है। जो भी समस्याएं हमें विरासत में मिली है, अब हमें उनको सुधारना होगा। समाज से निकला यही संदेश हमारे व्यक्तित्व और देश के लोगों को यही प्रेरणा देता है। यही कारण है कि 21वीं सदी का हमारा भारत पिछले 7 सालों से ही सामान्य भारतीयों के जीवन में सार्थक परिवर्तन लाने वाले अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है। बीते सालों में समाज ने एक राष्ट्र के रूप में हमारे सभी प्रयासों को शीर्ष पर पहुंचाने का प्रयास किया है। आज के नए युवा भारत में स्वच्छता, नई शिक्षा, डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों में संकल्प पूर्ण होते नजर देख रहा है। यही मेरे सपनों का युवा भारत है, यही मेरे उत्साह का नया भारत है। जय हिंद, जय भारत, मेरा लेख नहीं सकता। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड. A very good afternoon to all of you.
I, Utsav Singh of Uttarakhand State, stand before you to give my views on Utsaah of Nai Bharat. Quote, "Arise, awake, and stop not until the goal is reached." Unquote. A famous quote by Swami Vivekananda. We, the people of India, strongly believed in Swamiji and in his principles and teachings. And along with the enormous Utsaah enthusiasm, we are able to achieve many milestones and waiting to achieve many more. All these years has helped us to transform ourselves in new and better India. The India who is able to fulfill the aspirations of Nari Shakti and strengthen the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. Here we are talking about Utsaah, and it can be clearly felt by being here and being a part of 24th National Youth Festival despite of having a lot of problems due to pandemic COVID-19. Journey of India has been from snack charmers to computer charmers, and today the youth of India has its small finger on the tiny mouse of the computer, which is capable of making great changes and make great differences in the whole world. We have changed our attitude from Chalta hai to Badal Sakta hai, and the slogans like Bharat Chodo has been turned into Bharat Jodo. We have been excelled in various fields like medicine, sports, culture, economy, technology, and many more. We are able to stand and fight against Corona successfully. We have improved our defense and foreign policy exponentially. We have reached at 4th position in Firepower Index. We are able to provide platform to different people to dream big and show themselves out. New India has many missions going on like Skill India Mission, Atal Innovation Mission, Make in India Mission, Ujala Yojana, Khelo India, Startup India, Aspire Scheme, and many more for the upliftment of poor, providing support to sportspersons, scientists, doctors, and engineers. So our new India is confident, self-reliant, generous, powerful, brave, enthusiastic, patient, have integrity, willpower, and passion. We, the youth, is the backbone of India. We are India. Thank you. दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव। तमिलनाडु।
चेरी।